Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. So we are going to study about the measurement thing and the physical quantities. We have already started this lecture. This is the lecture 2, right? And this is the chapter 2 of class 6. ठीक है, और हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं ताकि जो आपके स्कूल एग्जामिनेशंस हैं और जो आपके ओलंपियाड्स लेवल के जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें. ठीक है, सो जस्ट डू सम फोकस ऑन द चैप्टर्स एंड what you have to do is to just study hard and smart, right? And you all know what we will be covering. We will be covering 6th, 7th and 8th Olympiads, NTSC, NSCJS, PRMO and your school examination, right? And you know we all have to do hard work. That's why I told you to go back on the chapter 1, master it and then come back on the chapter 2, right? And if you all need DPP and study material, all you need to do is to go on our Telegram channel, right? What you have to do is you have to write the code TTB06 for class 6. You can choose any code according to your classes, right? And TTB06 will be the for class 6. What you have to do is to write TTB06 on the search box, then click on the join, then join us. Alright, so तब क्या होगा, आप हमारे जो DPPs और स्टडी मटेरियल जो आप लोग को एक्सेस प्रोवाइड किया हुआ है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट? So this is the thing. And now let's come to the important thing. You know what, why this is important? Because this will definitely help you in cracking your examination. That's why it's important. So see, what you have to do is you have to go on www.talkingtextbooks.in. जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे, राइट? वहाँ पर जो भी पैकेज है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, कैसे और जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है, क्या क्या आपको फीचर्स उस पैकेज के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं, ऑल सच थिंग्स विल बी क्लियर. ओके, अब देखेंगे इस तरीके के पैकेजेस आपको प्रोवाइडेड होंगे वहाँ पे. ऑलराइट, जैसे ये है 6th क्लास का एग्जाम्पल. दिस इज द फाउंडेशन इन ओलंपियाड. व्हाट इज फाउंडेशन? डू यू नो दैट? फाउंडेशन मीन्स द बेसिक. दैट मीन्स यू आर स्टडिंग द बेसिक ऑफ द फिजिक्स. डेफिनेटली, तो अगर आप फाउंडेशन इन ओलंपियाड को स्टडी करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्रैकिंग योर बिग गोल्स, राइट? IIT, JEE एंड ऑल सच थिंग्स. ठीक है, तो वो जो कंपटीशन लेवल्स होते हैं उस तक रीच आउट करने के लिए यू हैव टू नो द फाउंडेशन. यू हैव टू नो योर फाउंडेशन, राइट? That's why you can join these. Now see, what you will be getting in this is comprehensive study material which is very organized and in a very structured. Alright, you can go step by step after reading that. And I'm sure that will be very much useful to you. Recorded in live classes. Recorded, why? Because whenever you need to go back on a certain topic or a certain lecture, you can go back and study there, right? You can clear your doubts too. Homework submission is crucial because some students never do homework, which is very much, a drawback for the students who want to crack the competition. That's why you must do the homework and you must submit the homework. Bi-weekly quiz. Bi-weekly quiz is important so that you can know that how much of the lecture you have gained and how much which are the some lacking parts for you. Periodic test papers are important ताकि आपको पता चल सके कि आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने जा रहे हैं और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने जा रहे हैं उसका पैटर्न कैसा होता है, हाउ यू शुड डू दैट एक्चुअली. कितना लेवल आता है क्वेश्चंस का, हायर लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, हाउ टू solve such huge number of questions in such a small time. That's all you're going to learn from the periodic test papers. All you have to do is to click on buy now and then you will be forwarded on this page, and this page has a very good thing because see, the cost of this package is 9,000, but if you write here CYLIVE CY live code here, you will be getting 30% discount. That is 2,700 will be deducted from the 9,000 and now the package will be of 6,300. So it's almost very much profitable to you. All you have to click on the buy package and choose the options whatever suitable for you. Now if you have any query related to the how to do that or any doubt about these packages, then you have to call on this number and your query will be resolved. Alright, and if you really want कि भाई तुमको ये lectures and all such things नहीं चाहिए but you know
दैट आप कहाँ स्टैंड करते हैं. यू वांट टेस्ट सीरीज एंड यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ कि आपको कितना नॉलेज है कितना नहीं. यू कैन चूज अदर टेस्ट सीरीज ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस कोड देयर सो दैट यू विल बी गेटिंग 30% डिस्काउंट ऑन दोज पैकेजेस टू. Alright, so this was the important thing I wanted to tell you for those who want to really crack their examinations. Now just take out your copies and books. Let's start the lecture number 2. Alright, now you will be promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and what you will be doing, you will be revising on a daily basis. Alright, now let's move on to the lecture number 2, that is measurement and conversion. आज हम लोग कन्वर्जन पे ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज कन्वर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो हर जगह पे यूज़ होता है. ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखेंगे कि भाई लेंथ का मेजरमेंट का हिस्ट्री कहाँ से चला आ रहा है और हम लोगों ने क्यों यूनिट्स बनाई हैं एंड ऑल सच थिंग्स विल बी स्टडिंग विच विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग. नाउ सी, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ लेंथ मेजरमेंट. अब आप बोलेंगे इसमें हिस्ट्री कहाँ है, बट एक्चुअली दिस इज द हिस्ट्री. जब पुराना ज़माना था, ठीक है, तो तब क्या होता था, लोगों के पास पहले से फिक्स तो चीज़ें नहीं थी. जैसे उनको नहीं पता था 1 kg क्या होता है, 1 किलोमीटर क्या होता है, कितना डिस्टेंस होता है 1 किलोमीटर. ठीक है ना, तो उनके पास वॉचेस थी, राइट. सो उनको लेंथ मेजर करने के लिए, जो कि डेफिनेटली उनको रियल लाइफ में करना ही पड़ता होगा, ज़मीन उनको जैसे मेजर करनी है या फिर वो अपना अगर घर बना रहे हैं तो उनको लॉग ऑफ वुड्स को मेजर करना होता है, कितना ऊंचा है कितना नीचा है, एंड ऑल सच थिंग्स विच नीड मेजरमेंट. बट एट दैट टाइम जब उनके पास ऐसा कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं था तो उनको क्या करना था, तो दे डिसाइडेड कि भाई उन्हें उनके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं दे यूज़ दैट टू द मेजरमेंट. कैसे, जैसे उनके पास हैंड्स अवेलेबल थे, ऑब्वियसली वी ऑल ह्यूमंस डू हैव हैंड्स, राइट. नाउ सी, उन लोगों ने जब भी कोई स्मॉल लेंथ को मेजर करना था, सो दे डिसाइडेड दिस इज कॉल्ड द 1 digit. दैट मीन्स द लेंथ ऑफ दिस to this point. All right, so this is the 1 digit. So they decided this is the 1 digit, and whenever they need to measure such small distances, they do measure in digits like 5 digits, 6 digits, right. And then the little bit of longer distances they measure with the span. Now this is the span, a fully stretched hand, and the distance from the tip of the thumb to the tip of the very smallest finger. So that distance is known as the span. So it can be measured like you can say log of wood can be measured, the length of the log of wood can be measured with this, right. Now see, foot. The foot means how much distance? The distance from the head of the toe, right, to the heel. That is the foot. Now you can say that कि भाई तुम्हारा घर और तुम्हारे फ्रेंड का घर, यू कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन दोज हाउसेज यूजिंग द फुट, राइट. अब उन लोगों ने इसके लिए भी खोज लिया. नाउ सी, क्यूबिट. वेन एवर द नीड टू मेजर द क्लोथ they can do that, right. क्यूबिट यूज कर सकते हैं. एंड what is क्यूबिट? क्यूबिट इज दी, like you can see the tip of the second finger to your elbow, tip of the elbow, right. ये जो डिस्टेंस होता था इसे क्यूबिट बोला जाता था. ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन सबको क्या बोला जाता है, बिकॉज हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ सी, दिस वाज द हैंड. यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द हैंड. ठीक है, फिर आता है इंच. नाउ सी, होल्ड योर थंब लाइक दिस. अब आपका जो टिप है आपके थंब का टू दिस पॉइंट is known as the inch, right. This is known as the inch. And then आपका आता है फेथम. फेथम इज आपके दोनों हाथ स्ट्रेच करो एंड देन आपका जो सेकेंड फिंगर है उसके टिप से लेकर आपके दूसरे हैंड के सेकेंड फिंगर के टिप तक जो लेंथ होगा दैट वुड बी द फेथम. ठीक है, एंड देन द यार्ड. यार्ड मतलब आपके नोज के टिप से लेकर एक हाथ जो आपने स्ट्रेच किया है वहाँ तक क्या हो जाएगा, यार्ड हो जाएगा. ठीक है, तो ऑल सच थिंग्स, एंड ऑब्वियसली एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ डेफिनेटली बॉडी पार्ट्स, सो दे डिसाइडेड टू यूज बॉडी पार्ट्स टू मेजर थिंग्स, ताकि डेफिनेट सी बात है उनका मेजरमेंट का जो प्रोसेस है वो ईजी हो सके. ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा यूज तो कर लिया, ठीक है, ऐसा सोच तो लिया दैट वी विल बी डूइंग दिस विल बी कॉल्ड इंच,
दिस विल बी कॉल्ड फेथम, दिस विल बी कॉल्ड फुट एंड ऑल सच थिंग। बट लेकिन वहाँ पर उनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। वो क्या? अगर वो ये इन सब चीज़ों को यूज़ भी करते हैं तो आप खुद बताओ कि क्या सभी ह्यूमन बींग्स का जो मेजरमेंट है, हैंड का मेजरमेंट, लेंथ का, लेग का, फुट का मेजरमेंट, वो सब डिफरेंट होता है? डेफिनेट सी बात है। अब जब सभी डिफरेंट होंगे तो क्या ये बेनिफिशियल हुआ कि आप मेजर कर रहे हैं, आप इंच मेजर कर रहे हैं, बट किसी का इंच छोटा है, किसी का इंच बड़ा है, तो इट वुड बी सो मच लाइक मेस, राइट? अगर आप मेजर कर रहे हैं तो कोई बोलेगा ये तो 5 इंच है, कोई बोलेगा ये तो 3 इंच है, एंड यू विल बी कंफ्यूज कि एक्चुअल मेजरमेंट कितना है। इतने सारे कंफ्यूजन को हटाने के लिए दे डिसाइडेड समथिंग कि व्हाट शुड बी डन। सो दे डिसाइडेड, ठीक है, सम पीपल, यस, दे डिसाइडेड टू चूज अ यूनिट विच इज एक्सेप्टेड by everyone and which is same for everyone, because the drawback they get from the measurement of their hands and legs, what they get, the measurement using such units was not accurate. Definitely it was not accurate. Why not accurate? Because किसी का कुछ बड़ा हैंड हो गया अगर, तो उसका देखो उसका स्पैन बड़ा हो जाएगा, लाइक किसी का छोटा अगर हाथ है तो उसका स्पैन छोटा हो जाएगा। तो दैट इज द थिंग कि वो एक्यूरेट नहीं है, किसी के लिए बड़ा स्पैन है, किसी के लिए छोटा स्पैन है, सो इट्स नॉट एक्यूरेट। तो ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक देखो, दीज यूनिट्स वर नॉट वेरी रिलायबल। डेफिनेट सी बात है, रिलायबल नहीं है। एज द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का बॉडी पार्ट ज़्यादा बड़ा है, किसी का बॉडी पार्ट छोटा है। जैसे आप बोल सकते हो कि भाई किसी का हैंड बड़े हैं, किसी कोई अगर कोई पहलवान जैसा कुछ मोटा अच्छा एक गुड बिल्ड वाला अगर कोई इंसान होगा तो डेफिनेट सी बात है कि उसका फेथम भी ज़्यादा होगा, उसका यार्ड भी ज़्यादा होगा, राइट, उसका क्यूबिट भी ज़्यादा होगा, उसका स्पैन भी ज़्यादा होगा। लेकिन कोई अगर स्मॉल, यू कैन से अ स्मॉल हाइटेड मैन और समथिंग, ठीक है, अगर आप उसको मेजर करते हैं, उसको देखते हैं, तो ही विल बी हैविंग स्मॉल हैंड्स कंपेयर टू दैट वेल बिल्ड पर्सन, राइट। तो अब अगर ये दोनों मेजर करने लगेंगे किसी भी एक चीज़ को, ठीक है, अगर वो एक चीज़ को मेजर करने लगेंगे तो यू विल बी गेटिंग टू डिफरेंट मेजरमेंट्स। Then how will you say भाई कौन सा reliable है, which one should be the accurate one? You cannot say that. That's why they decided that we have to overcome these drawbacks, and they decided to get a quantity which is fixed for everyone and which can be used everywhere, right? So they decided to using a standard measurement system, ठीक है। what is standard we can say that is fixed for everyone, that is standard, alright। if you know that 1 kg इतना है and that is the fixed quantity, 1 kg में कितना सामान आना चाहिए, that should be fixed, amount of 1 kg should be fixed। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 kg हुआ that's a standard value, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स है for every single person, ठीक है। तो देखेंगे उसका अगर हम कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। नंबर 1, दे हैव अ फिक्स्ड क्वांटिटी। ऑब्वियस सी बात है, आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी मिलेगी और वो हर किसी के लिए फिक्स होगी, कोई आपको चीट करने की कोशिश नहीं करेगा, राइट। अब कर भी नहीं पाएगा, अगर वो करेगा भी ना तो आपको पता चल जाएगा। एंड यू शुड स्मार्ट, यू शुड नॉट लेट एनीवन चीट यू, राइट। They do not vary from person to person. That's the good thing. Because अगर 1 kg की बात हो रही है तो वो जो well built person था उसके पास जितना 1 kg का कुछ भी सामान जाएगा, जो स्मॉल पर्सन था उसके पास भी उतना ही 1 kg का सामान जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल फॉर बोथ द पर्सन, भले ही उनका बॉडी का मेजरमेंट कैसा भी हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे डू नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ दिस इज न्यू। प्लेस टू प्लेस का क्या मतलब है, वो ऐसा कि भाई अगर एक लेट्स से कि भाई एक सिटी में दे डिसाइडेड, कुछ पीपल ने डिसाइड किया कि वी शुड यूज़ अ लेंथ, ठीक है, एक फिक्स लेंथ हमको करना चाहिए, एंड दे यूज़ लाइक किलोमीटर, ठीक है, उन्होंने किलोमीटर यूज़ करना शुरू किया, एंड दैट इज़ फिक्स्ड फॉर दोज ओनली फॉर दो सिटी, ठीक है। लेकिन कोई और सिटी लेट्स से इन अनदर कंट्री अगर कोई वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन वो 1 किलोमीटर की जगह पे 1 मीटर डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर 1 मीटर यूनिट्स यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे किलोमीटर यूनिट्स यूज़ हो रही हैं। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर ये दोनों सिटीज़ आपस में कन्वे करने की कोशिश करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का बिजनेसमैन अगर यहाँ पर जाकर अपने कुछ सामान बेचना चाहे, ठीक है, यहाँ पर कुछ सोल्ड करना चाहे, कुछ बिजनेस करना चाहे, तो फिर वहाँ की यूनिट्स और यहाँ की यूनिट्स तो डिफरेंट है। यहाँ पे 1 किलोमीटर यूज़ हो रहा है, वहाँ
1 मीटर यूज़ हो रहा है तो इट वुड बी सो मच मेस, राइट। तो क्या करना होता है कि अगर ये दोनों सिटीज़ भी सेम टू सेम अगर मेजरमेंट करती हैं, लेती हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करती हैं, तो फिर इट विल बी वेरी मच ईजी। दैट्स वाई दे डिसाइडेड कि ऐसा स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए जो पर्सन टू पर्सन भी चेंज ना हो और प्लेस टू प्लेस भी चेंज ना हो, ताकि अगर तुम कभी इंडिया से अमेरिका जाओ तो kg वुड बी द सेम, 1 kg शुड बी द सेम एज 1 kg इन अमेरिका, राइट। दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला कि भाई दैट शुड बी द स्टैंडर्ड वन विच शुड नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। Now these are the advantages, 3 advantages we are getting. Which one? They have a fixed quantity, they do not vary from person to person and they do not vary from place to place, right? So these 3 things will be important. उसका अच्छा example क्या है? Let's see. The metric system created by the French in 1790 is a standard set of units, ठीक है। ये जो metric system है ये हम use करते हैं, ठीक है, डेफिनेट सी बात है, और ये 1790 में बनाया गया था एंड इट वाज द स्टैंडर्ड वन। स्टैंडर्ड वन क्यों? वहाँ के सभी लोग इस मेजरमेंट को मानते थे, दे एक्सेप्टेड, दे अडॉप्टेड, ठीक है। सो दैट वुड बी द स्टैंडर्ड वन, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो कौन बनाता है, ठीक है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो कौन कौन लोग अडॉप्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर आप देखो कि जैसे मान लीजिए इंडिया में कुछ साइंटिस्ट लोग से, ठीक है, उन लोगों ने कुछ डिस्कवरी की, लेट्स से उन्होंने रॉकेट बनाया, ठीक है, एंड दे क्रिएटेड सम, यू नो, रॉकेट बनाने के लिए आपको बिल्कुल मेजरमेंट करना चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए। लेट्स से इन्होंने जो कॉपी में या फिर उन्होंने जो एक रफ फिगर बनाते हैं, जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑन द पेपर बिफोर मेकिंग इट रियल, तो उन्होंने पेपर पे बनाया वो रॉकेट, ठीक है, एंड दे डिसाइडेड कि उन्होंने क्या किया है, 1 इंच उन्होंने यूनिट लिया है एंड दे यूज्ड लाइक इंचेस, ठीक है, उन्होंने जो लेंथ मेजरमेंट के लिए यूनिट लिया है दे चूज इंचेस, ठीक है। अब क्या होता है, दे वांटेड टू यू नो कि वो पूरी जगह पे फैलाना चाहते हैं, दे वांटेड टू कन्वे इट टू द अमेरिकन वन, ठीक है। अब जो अमेरिका में लोग रहते हैं वो कैसे समझेंगे, बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज इंच, राइट, तो वहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी। अगर अमेरिका वालों को भी इंच पता होता तो इट वुड बी सो मच ईजियर टू कन्वे द डिज़ाइन ऑफ रॉकेट टू द अमेरिकन्स, राइट। दैट्स वाई यहाँ पर इन लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करा जो कि वर्ल्ड वाइड है, दैट मीन्स एक्सेप्टेड बाय होल वर्ल्ड, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये कैसे हेल्प कर देगा, जैसे अगर हमारे इंडियंस ने कोई डिज़ाइन किया रॉकेट, वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करेंगे, एंड जैसे ही वो इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करते हैं और वो फिर अमेरिकन्स को कन्वे करते हैं कि दिस इज़ द डिज़ाइन और समथिंग जो भी डिस्कस करना है या फिर शेयर करना है, अब अमेरिकन्स इजीली समझ जाएंगे बिकॉज दे नो कि उन्होंने जो इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ किया है, दे नो अबाउट इट एंड दे टू यूज़ इट, सो इट वुड बी सो मच ईजियर टू कन्वे द मैसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। इसी वजह से सभी कंट्रीज में सेम मेजरमेंट चलना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट जब कभी भी 2 कंट्रीज आपस में मैसेज कन्वे कर रही हूँ एटलीस्ट तब तो इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से जो इंटरनेशनल सिस्टम है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ताकि हम लोग एक साथ डेफिनेटली ग्रो अप कर सके, ठीक है। द अडॉप्शन ऑफ SI यूनिट्स, व्हाट इज SI, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, इसको हम SI बोलते हैं, ठीक है, हैज़ मेड इट ईजियर फॉर साइंटिस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टू कम्युनिकेट देयर रिजल्ट्स टू वन अनदर। डेफिनेट सी बात है, साइंस जब कभी ग्रो करती है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए करती है, सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं करती, राइट। सो दूसरे डिफरेंट के जितने भी साइंटिस्ट होते हैं दे शुड कन्वे देयर मैसेजेस टू द अदर कंट्रीज पीपल, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मच important to use the standard system. The SI system of units was adopted in 1960. तो अब तुम यहाँ पे नोट करना शुरू करो that it was made in when 1960, ठीक है। तो ये 1960 में जब बनाया गया, और किसने बनाया, सी बाय द जनरल कन्फरेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये कौन है, जनरल कन्फरेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर, एक ऐसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, 1 किलोमीटर, 1 kg, 1 सेकेंड, इस तरीके की यूनिट्स को फिक्स करते हैं, ठीक है, ताकि ये सभी लोगों के लिए इक्वल रहे, ठीक है। तो किसने किया, जनरल कन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने डिसाइड किया, उन्होंने ये सिस्टम क्रिएट किया, राइट। 1960 में इसको जो है अडॉप्ट किया गया।
ठीक है। SI इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम of international system of units. It should be like that, right? In French, actually ये जो नाम था SI जो शॉर्ट फॉर्म है, ये एक्चुअली एक वी कैन से एक फ्रेंच नेम का शॉर्ट फॉर्म है, बिकॉज ये जो जनरल कन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर था ये फ्रेंच में बनाया गया था, दैट्स वाई। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि भाई जो फ्रेंच पूरा सिस्टम था, डेफिनेटली वो अपना नाम फ्रेंच में ही रखेंगे, है ना। तो उन्होंने जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था इसका नाम फ्रेंच में ही रखा था, इसीलिए इसका जो शॉर्ट नेम है दैट्स SI, नॉट दी IS, ठीक है। इट इज़ व्हाट दी SI, एंड उसका जो क्या फुल फॉर्म है, यू विल बी सेइंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में है इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल पहले आ रहा है, बट फ्रेंच में सिस्टम पहले आता था, इंटरनेशनल बाद में आता था, दैट्स वाई। नाउ सी, इस सिस्टम में जो SI स्टैंडर्ड सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस सिस्टम के अंदर जो हम लोगों को यूज़ करना है वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सभी लोगों ने अडॉप्ट की हुई हैं। सी, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज दी मीटर, दैट मीन्स अगर कोई मीटर बोलता है इंडिया में तो दे विल बी अंडरस्टूड बाय द अमेरिकन्स टू, राइट। लेकिन ज़रूरी नहीं है यूनिट सिर्फ SI हो, बिल्कुल सही बात है। आप लेंथ को देखो, लेंथ की कितनी सारी यूनिट्स हैं, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, राइट। हम लोग कितनी सारी यूनिट्स जानते हैं, लेकिन SI सिर्फ एक होगी, लेंथ की SI एक, ठीक है, टाइम की SI कोई एक, मास की SI कोई एक, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई तुमने यहाँ पे देख लिया है SI यूनिट ऑफ लेंथ इज दी मीटर, लेंथ का हमने डिसाइड कर दिया है, SI कौन हुआ, मीटर, ठीक है। जो अदर कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स है वो तो डेफिनेटली है ही है, अदर यूनिट्स भी हैं जो कि वेरी मच फिक्स्ड है, ठीक है, सभी लोगों के लिए बराबर है। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल फॉर एवरीवन, जो तुम्हारे लिए जितना 1 सेंटीमीटर है तुम्हारे फ्रेंड के लिए भी उतना ही 1 सेंटीमीटर है, तुम्हारी मॉम के लिए, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए, पूरे इंडिया के लिए 1 सेंटीमीटर उतना ही है, राइट। लेकिन other units में count होता है, this is not the international system of units. Whenever you are going to convey with the international system to the other countries, you should use meter, right? देखो दूसरी लेंथ कौन सी है, इंच है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं, बट द SI वन इज व्हाट, मीटर ओनली, ठीक है। इसी तरीके से मास की SI कौन हुई, किलोग्राम, kg जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, kg, ठीक है, स्मॉल k स्मॉल g। एंड सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ टाइम, यू शुड नोट दैट, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। SI यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, मीटर, SI यूनिट ऑफ मास इज व्हाट, kg, SI यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, ठीक है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो चलिए अपन हम लोग थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, एंड दिस शुड बी नोटेड डाउन, नोटेड वेरी फास्ट। ऑल राइट, नाउ सी, हम लोग अब हमारे पास यूनिट्स तो बहुत सारी हो गई, ठीक है, बहुत सारी हो गई। हमने अभी भी देखा ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, ये सब बहुत सारी यूनिट्स हैं। हमें कब कौन सी यूनिट यूज़ करनी है ये हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग अपने डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी यूनिट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जब हमें कभी भी किसी भी दो सिटीज़ के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में, या फिर दो बहुत दूर प्लेसेस हैं उन लोगों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है तो हमें कौन सी यूनिट मेजर करनी चाहिए, कौन सी यूनिट यूज़ करनी चाहिए, किलोमीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स इफ वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, what we are doing, we should measure it in kilometers, ठीक है। किलोमीटर is a length of unit which is very big, that's why I am suggesting you this, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मीटर। लेट्स से कि आपको क्या करना है, आपको आपके घर का गार्डन को मेजर करना है कि भाई कितना बड़ा आपका गार्डन है, या फिर कितना बड़ा आपका घर है, या फिर कितना बड़ा आपका रूम है। यू शुड यूज व्हाट, मीटर। व्हाई मीटर? बिकॉज दिस इज much less than the kilometer and much greater than the other units too. That's why meter is very good for the measurement of your house, for the measurement of your garden, for the measurement of your room, your school room, right? You can say that.
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस बी का। नाउ सी, ये जो बी होती है बहुत छोटी होती है, लाइक आप तो इतना बोल सकते हैं, ठीक है, इतना सा होती है। नाउ सी, अगर वो इतनी छोटी होती है तो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर विल बी नॉट गुड। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज व्हाट, द मिलीमीटर, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल एंड अकॉर्डिंग टू इट्स साइज इट इज वेरी एक्यूरेट। अगर हम बी को देखें तो सी, उसका हाफ पार्ट इज 5 मिलीमीटर, दैट मीन्स ये जो बी है एक्चुअल में ओनली 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो नाउ सी, आपको यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है, आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू दी साइज। आपको जिस भी चीज़ का मेजरमेंट करना है आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन सी यूनिट यूज़ करोगे। इफ़ इट इज़ वेरी स्मॉल यूज़ मिलीमीटर, इफ़ इट्स लिटिल बिट बिग यूज़ मीटर, इफ़ इट्स वेरी बिग यूज़ किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल द हाइट ऑफ द माउंटेन, है ना। अब हाइट ऑफ द माउंटेन आप मिलीमीटर में लिखोगे तो इट वुड बी सो मच बिग नंबर, that's why it was very suitable to write that measurement in the kilometer, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब कभी आपको थोड़ी बहुत बड़ी चीज़ मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आपको गार्डन से छोटी चीज़ मिले एंड इस बी से बड़ी चीज़ मिले, ठीक है, अगर वैसे आपको कोई चीज़ मिलती है तो यू शुड यूज़ व्हाट, दी सेंटीमीटर। जैसे आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, यू कैन सी स्केल से हम क्या करें, इरेजर का लेंथ ले रहे हैं, तो इट वुड बी गुड अगर हम क्या करेंगे, अगर हम बी से कोई बड़ी चीज़ होगी उसका अगर हमें मेजरमेंट करना है तो वी शुड चूज व्हाट, दी सेंटीमीटर लेंथ, राइट। सो दिस इज द थिंग्स यू शुड बी चूजिंग, ठीक है। तो इस तरह हम डिसाइड करते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेजरमेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिट, कि भाई उस बॉडी का कितना साइज है, ठीक है, या फिर उस डिस्टेंस का कितना, मतलब कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, कितना कम डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चूज़ करना होगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। नाउ एक बहुत अच्छी चीज़ जो है मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हैं सारी यूनिट्स, लेट मी से, देखो ये है सारी यूनिट्स जो आपकी इंपॉर्टेंट वंस हैं, इससे भी बहुत सारी होती है लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतनी बता रही हूँ बिकॉज दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। अब देखेंगे मीटर, तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। हम मीटर को, क्योंकि मीटर ऐसा ही है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई बड़ा नंबर लेना होगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, लेट मी चूज अ पेन, अ डिफरेंट वन, लेट मी पर्पल वन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे मीटर ले रहे हैं, हम लोग जानते हैं ना कि ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, मीटर को बिल्कुल बेसिक मान लिया कि हम मीटर से ही शुरुआत करेंगे, जहाँ की भी शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये जो मीटर है वो हमने ले लिया है एक बेसिक वन, ठीक है। नाउ दिस इज द बेसिक, ठीक है, दिस इज द बेसिक। अब क्या करना है, अब अगर मुझे मीटर से कोई बड़ी लेंथ चाहिए तो आई विल मल्टीप्लाई विद दी 10, ठीक है। और अगर मुझे मीटर से छोटी यूनिट चाहिए तो आई विल डिवाइड इट बाय दी 10। देखो कैसे, अगर मुझे मीटर से बड़ी यूनिट चाहिए डेकामीटर, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे डेकामीटर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि भाई 10 मीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, मीटर से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर मिल गया मुझे। इसी तरीके से मुझे एक और स्टेप और थोड़ा बड़ा चाहिए तो आई विल अगेन मल्टीप्लाई इट विद 10 और मुझे क्या मिल जाएगा, हेक्टोमीटर मिल जाएगा। अब मुझे इससे भी बड़ा चाहिए तो व्हाट आई विल डू, मुझे एक और जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, आई विल गेट किलोमीटर, राइट। अब ये तो बड़े डिस्टेंसेस हुए, ठीक है। अब मुझे छोटा डिस्टेंसेस चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा, देखो जब मुझे मीटर से मैंने 10 से डिवाइड किया तो आई विल गेट व्हाट, डेसीमीटर। फिर से मैंने 10 से डिवाइड किया, आई विल गेट सेंटीमीटर। फिर से मैंने 10 से डिवाइड किया, आई विल गेट मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर मुझे छोटे छोटे की तरफ जाना है, छोटे लेंथ्स की तरफ जाना है, तो मैं क्या करूंगी, मीटर को डिवाइड करते चलूंगी, ठीक है, 10 से, फिर 100 से, फिर 1000 से, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मीटर से बड़े डिस्टेंसेस चाहिए होंगे, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लेंस,
स्मॉलर देन द मीटर, जो मीटर से छोटी होती हैं वो क्या होती हैं, सब मल्टीपल्स होती हैं, ठीक है, उन्हें हम सब मल्टीपल्स बोला जाते हैं। तो ऐसी लेंथ्स जो मीटर से छोटी होती हैं उन्हें बोलते हैं सब मल्टीपल। वाई, दैट मीन्स ये तीन जो है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर सब मल्टीपल्स, ठीक है। एंड इफ आई वॉन्ट टू मेजर द बिग वंस, ठीक है, जैसे कि कौन, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, दीज आर बिगर देन मीटर, तो फिर ये जो यूनिट्स होंगी दीज विल बी कॉल्ड मल्टीपल, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल्स बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ यू आर गेटिंग कि भाई क्या चल रहा है। जैसे हमको अगर ये लिखना होगा, डेसीमीटर लिखना होगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, इसका मतलब 1/10 मीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, तो मीटर को 10 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, डेसीमीटर मिल गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सभी यूनिट्स को रिमेंबर करने के लिए आपको क्या ट्रिक यूज़ करनी है, ठीक है। ये जो ट्रिक है ये मैंने होप सो बनाई हो, ठीक है। नाउ सी, किंग हैरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चोको मिल्क, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है, किंग हैरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चोको मिल्क, ठीक है। वैसे तो चोको मिल्क हम सभी ने पिया है, ठीक है, बट किंग हैरी ने जब उसको पिया तो ही डाइड। सो हाउ वी कैन रिमेंबर ऑल दीज यूजिंग दिस, सी यू कैन इजीली सी किंग, ठीक है, दिस इज द थिंग, लेट मी यूज द पेन, ठीक है। देखेंगे ये जो किंग है दिस इज के, ठीक है। अब के जो है उससे आप क्या याद कर सकते हैं, किलोमीटर, ठीक है। फिर आता है हैरी, यू कैन सी हैरी एच, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, हेक्टोमीटर, एच फॉर हेक्टोमीटर, एच फॉर हैरी, ठीक है। फिर देखेंगे डाइड का डी, और यहाँ पर हमारे यूनिट में क्या आ जाएगा, डेकामीटर, ठीक है। अब देखो सिर्फ एक जो चीज़ तुम्हें रिमेंबर करनी है, बाय, ये जो बी है उसकी जगह तो तुम लोग यहाँ देखोगे कि यहाँ तो मीटर है, सो वी टेक इट एज अ बेस, राइट। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने इस मीटर को बेस लिया है, ठीक है, इसी को हम डिवाइड कर रहे हैं और इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वी से बाय इसका मतलब बेस, ठीक है, वी विल टेक दिस एज बेस, ठीक है। अब देखेंगे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए क्या यूज करेंगे, डेसी, ठीक है। फिर आता है चोको, चोको के लिए क्या यूज करेंगे, सेंटीमीटर, एंड देन मिल्क, मिल्क के लिए क्या यूज करेंगे, मिलीमीटर, ठीक है। सो वी कैन रिमेंबर इजीली व्हाट, किंग हैरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चोको मिल्क। नाउ सी, चोको मिल्क से कोई नहीं मरता है, दिस इज जस्ट फॉर रिमेंबर, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि भाई तुम दूध पीना बंद कर दो, बट दूध पीना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैंने पहले ही बता चुका है ये बात। तो चलिए, तो दैट्स हाउ वी शुड रिमेंबर दीज यूनिट्स, और इजीली आप रिमेंबर कर पाएंगे। ये बहुत सारी है, मतलब अभी आपके लिए बहुत सारी है, लेकिन आगे जाके जब और भी ज़्यादा होंगी तो भी रिमेंबर करने में डिफिकल्टी होगी, राइट। सो यू कैन लर्न दीज बाय यूजिंग दैट ट्रिक, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन, लेट्स कन्वर्ट दीज फर्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे, मैं आपको कन्वर्जन की ट्रिक बताती हूँ कि कन्वर्ट कैसे करना है, आपको कब करना है, ठीक है। देखेंगे आपको, जब ये बात तो आपको पता है ना कि मीटर इज द बेस, राइट, मीटर इज द बेस, ठीक है। अब देखेंगे जब आपको किलोमीटर, जो कि बड़ी यूनिट है, ट्रिक क्या है कि भाई जब आपको किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो यू शुड डिवाइड, ठीक है, और जब आपको किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है यू शुड मल्टीप्लाई। क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, लेट मी राइट इट ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। आपको याद करना है कि भाई जब हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की तरफ जाते हैं, ठीक है, बिग से स्मॉल की तरफ जाते हैं, लाइक दिस इज बिग, किलोमीटर बहुत बिग बड़ा है, मीटर इज स्मॉल, है ना,
तो हम लोग यहाँ तक जाने के लिए वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो वी शुड क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए मल्टीप्लाई, राइट। सो वी शुड मल्टीप्लाई, मैंने एक बहुत बड़ा मल्टीप्लाई साइन बना दिया, ठीक है। वी शुड मल्टीप्लाई, कब मल्टीप्लाई करना है हमें, जब हम बिग से स्मॉल जाएंगे, एंड जब हम स्मॉल से बिग जाएंगे तो क्या करना है हमको, जब हम स्मॉल से बिग जाएंगे तो क्या करना है हमको डिवाइड करना है, ठीक है। बस ये दो चीजें अगर तुम्हें रिमेंबर हो जाती हैं तो यू विल बी वेरी गुड एट कन्वर्जन, ठीक है। हमको क्या करना है, बिग से स्मॉल जाएंगे तो वी शुड मल्टीप्लाई, राइट, एंड स्मॉल से बिग जाएंगे तो वी शुड डिवाइड। अब कैसे करें इसको, देखो ये देखो, ये है किलोमीटर विच इज वेरी बिग, वी नो दैट, राइट, एंड मीटर इज स्मॉल, सो वी आर गोइंग बिग टू स्मॉल, राइट, बिग टू स्मॉल, दैट मीन्स वी शुड मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना। अब देखेंगे ये जो मीटर है उससे मैं जा रही हूँ सेंटीमीटर, मीटर इज बिग फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से तो बड़ा ही है ना मीटर, तो ये बड़ा है, राइट, इट इज बिग, सेंटीमीटर इज स्मॉल, तो हम क्या कर रहे हैं, वी जंप, जब हमें इस बड़े से छोटे पे जाना है तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब देखो ये जो सेंटीमीटर है दिस इज बिग फॉर मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा है ना ये, तो जब हमें सेंटीमीटर से मीटर करना है दैट मीन जब मुझे बिग से स्मॉल जाना है तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन कि भाई जब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना होता है तो क्या करना होता है। लेट्स सी, दिस इज द वेरी स्मॉल, मिलीमीटर बहुत स्मॉल यूनिट होती है, और हमें सेंटीमीटर की तरफ जाना है जो कि थोड़ी सी बड़ी होती है मिलीमीटर से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब हमें सेंटीमीटर जो कि एक छोटी यूनिट होती है एंड मीटर जो कि एक बड़ी यूनिट होती है, तो वी आर गोइंग स्मॉल टू बिग, ठीक है। स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगेन हम स्मॉल से बिग की तरफ जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर डिवाइडिंग बाय 100, ठीक है। इसी ट्रिक को यूज करते हुए लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। आप ट्रिक को यूज कर सकते हैं यहीं पे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू नाउ। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए 25 किलोमीटर इन मीटर, अब हम क्या कर रहे हैं, हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। व्हाट इज किलोमीटर, दिस वन बिग, व्हाट इज मीटर, स्मॉल वन, राइट। अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में जंप करना है तो आई शुड मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो मुझे क्या करना है, अब देखो 25 किलोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है, राइट। मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज किलोमीटर से मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, तो लेट्स डू दैट, ठीक है। 25, वेट सेकेंड, इक्वल्स टू 25 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट वी डिड, 25 इंटू 1000, और हमने लगा दी छोटी यूनिट, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया ना वैसे ही हमने छोटी यूनिट लगा दी, ठीक है। तो अब ये कितना बन जाएगा, इट विल बी 25,000 मीटर, that's it, that's how we are going to do it, right. Now let's see again 15 centimeter, 15 सेंटीमीटर इन मीटर। अब आप देखो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, सी सेंटीमीटर इज द स्मॉल वन, जो मीटर है दैट इज बिग, दिस इज, तो इस बार हमें क्या जाना है, हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है, राइट। हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो वी शुड डिवाइडेड बाय 100। नाउ लेट्स डू दैट। देखो 15 सेंटीमीटर है इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 100, और हम कौन सी यूनिट लगा देंगे, जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसमें हम लिखा देंगे, ठीक है। तो इट वुड बी 15 डिवाइडेड बाय 100, और हमने क्या लिख दिया, मीटर लिख दिया, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट इट इन मीटर, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब 0.15 मीटर। वाई आई डिड दैट, हाउ आई डिड दैट। देखो जब कभी भी डिवीजन में कोई भी 10, 100, 1000 इस तरीके के नंबर्स होते हैं तो हमको क्या करना होता है, पॉइंट्स को पीछे भेज देना होता है जितने जीरोज होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 100 में 2 जीरो हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को बैकवर्ड भेज देंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप, तो देखो 1 के इधर आ गया ना पॉइंट, तो इट विल बी 0.15। इट्स सो ईजी, राइट, यू कैन डू दैट टू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, दैट इज 1 मीटर इंटू मिलीमीटर। नाउ सी
1 मीटर इंटू मिलीमीटर, मतलब दिस वुड बी बिग, राइट। ऐसे करके हमको जाना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 मीटर, फिर इक्वल्स टू लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने क्या किया, 100 से अब हम सेंटीमीटर पहुंच गए। जैसे ही हम सेंटीमीटर पहुंचे सो वी गेट 100 सेंटीमीटर, मिल गया अब हमको 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग मिलीमीटर की तरफ जा रहे हैं और स्मॉल यूनिट है, दैट मीन्स हमको 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग अगेन, और इस नंबर को, इस 100 को ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से ही हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इट वुड बी हाउ मच, मिलीमीटर। तो फाइनली हमको फाइनली जो मिल रहा है दैट वुड बी 1000 मिलीमीटर। तो दैट्स हाउ वी डू कन्वर्ट, राइट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग को कन्वर्ट करना कितना 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 ईजी हो गया है। कैसे ईजी हो गया, ईजीली कर सकते हैं हम इसको, राइट। अब जो है आप लोग को यही होमवर्क में भी करना है। क्यों, होमवर्क में आपको क्या करना है, बिना देखे यू ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ ऑन योर ओन, राइट। डू नॉट लुक एट दी वीडियोज एट दैट टाइम, ठीक है। एंड वी कैन ऑलरेडी डू सच क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि भाई तुम्हारी जो नॉलेज है वो कितनी अच्छी है, ठीक है। देखेंगे द प्रीफिक्स मीनिंग 1000 इज कॉल्ड, हमने देखा था अभी 1000 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था ना। अगर हमें मीटर से बड़े की तरफ जाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। और हमने ये भी देखा था कि भाई जो बेस है मीटर एंड आई वांट टू रीच एट किलोमीटर, तो आई शुड मल्टीप्लाई इट विद 1000, दैट्स व्हाट इट इज, राइट। दिस इज व्हाट किलोमीटर। लेट मी चूज पेन, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ ये किलोमीटर कैसे है। सी दिस इज दी 1000, राइट। अब मुझे क्या पता चला था कि जब मैं लिख रही थी 1 किलोमीटर आई विल बी गेटिंग 1000, बिकॉज मुझे अगर बड़ा यूनिट चाहिए, आई वांट अगर बिग यूनिट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई शुड मल्टीप्लाई विद 1000, राइट। तो दैट्स हाउ आई गॉट 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1000 होता है ना, इसका मतलब होता है 1K, किलो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम लोग वैसे भी तो मनी को भी तो के में बोलते हैं ना, 1K, 5K, 3K, दैट मीन्स द 1000, राइट। तो इस बार तुम कंफ्यूज मत होना, 1000 का मतलब होता है K, दैट इज द किलो 1, ठीक है। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज द यूनिट ऑफ, क्यूबिक सेंटीमीटर्स, डू यू नो दैट, सेंटीमीटर्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स 3 बार हमने क्या किया है, सेंटीमीटर 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 को मल्टीप्लाई कर दिया है। सो दिस इज व्हाट द क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको ये बात पता है कि जब 1 लेंथ होती है तो वी से इट राइट व्हाट, सेंटीमीटर। जब हमें एरिया की बात करनी होती है सो व्हाट वी डू, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब कभी भी हम लेंथ की बात करते हैं तो दैट इज व्हाट, सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो वी से सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ट्वाइस ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इट इज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सो वी से इट लाइक थ्राइस, ठीक है। हम सेंटीमीटर 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 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आपको कुछ पता चला कि हम सेंटीमीटर 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 को क्या लिख सकते हैं, वी से इट व्हाट द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, राइट। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच प्रीफिक्स इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे स्मॉलेस्ट वन। तो आज हमने सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा पढ़ा था, रिमेंबर द ट्रिक, किंग हैरी died by drinking choco milk, right? That was the last one, that was the smallest one, that is milli. तो इसका मतलब कौन हुआ कि मिली would be the very 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 smallest one among these, है ना। देखो डेसी डेका किलो से तो छोटा ही होता है, हालांकि उससे भी छोटे बहुत सारे होते हैं, बट फिर भी यहाँ पर तो मिली छोटा ही है, ठीक है। नाउ सी द लीटर इज अ यूनिट ऑफ,
तुम लोग को पता है लीटर क्या होता है? जब कभी भी तुम लोग दूध लेते हो तो यू से इट लाइक कितने लीटर दूध लिया, राइट? जब कभी भी हम लिक्विड चीज़ों की बात कर रहे होते हैं तो हम जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ लीटर, राइट? तो यहाँ पे देखेंगे लीटर इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, नो, बिल्कुल भी नहीं. इज़ अ मास, नो, बिकॉज वी नो kg ग्राम दैट इज़ द मास, राइट? वॉल्यूम, नो, टोटली नो, मैंने अभी तुम्हें वॉल्यूम के बारे में बताया. सो ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज व्हाट? द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. ठीक है, टाइम के लिए डेफिनेट सी बात है सेकेंड, आवर, मिनट, तो तुम लोग को पहले से ही पता है. सो वॉल्यूम, जब कभी भी हम लिक्विड का वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं तो वी यूज द यूनिट लीटर. जब कभी हम किसी सॉलिड का वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं वी यूज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और किलोमीटर इंटू किलोमीटर इंटू किलोमीटर. ठीक है, थ्राइस ऑफ द यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है, not the thrice cube of the unit of length. Now see, what is the short form of the international system of units? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका है, this is your own, खुद से करेंगे ये क्वेश्चन. ऑब्वियसली मैं पहले बता चुकी हूँ, तुम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है. क्या हम उसको ISU बोलते हैं? क्या हमने ऐसा पढ़ा? नॉट एट ऑल. क्या हम उसको मीटर बोलते हैं? नॉट एट ऑल. ठीक है, क्या हम उसको किलोग्राम बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो हमारा बचा क्वेश्चन कौन? SI. दैट मीन्स ऐसा ही बोलते हैं ना, और हम सचमुच में ऐसा ही बोलते हैं, मैंने तो यही बताया था. ठीक है, तो यू शुड नोट दीज डाउन, दीज आर इंपॉर्टेंट वन. आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है, लिक्विड का अलग और सॉलिड्स का अलग. ठीक है, तुम लीटर को जो है तुम सॉलिड का वॉल्यूम से नहीं बता सकते. ठीक है, नाउ लेट्स डू दी next 5 question. These are the very easier one I want. You will measure the mass of a big lump of cookie dough in terms of. Now big lump of cookie dough, that's the cookie dough. अब इतना बड़ा भी नहीं होगा कि तुमको बहुत ज़्यादा यूनिट चाहिए हो. ठीक है, तो it would be लीटर. क्या उसका यूनिट लीटर होगा? हमने पढ़ा था, अभी हमने सीखा, जब हमें लिक्विड्स के वॉल्यूम की बात करनी है तो हम लीटर यूज़ करेंगे. ठीक है, सेकेंड तो टाइम का यूनिट होता है, तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. किलोग्राम, क्या हम इसमें कर सकते हैं? अ चांस, हम किलोग्राम कर सकते हैं. ठीक है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, सो द ओनली ऑप्शन इज व्हाट? द किलोमीटर. सो यस, वी कैन मेजर द कुकी डो इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, राइट? हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन किलोमीटर? हाउ मैनी सेंटीमीटर आर देयर इन किलोमीटर? नाउ दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. कैसे देखेंगे? जो 1 किलोमीटर होता है उसके अंदर होते हैं 1000 मीटर. ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. और हम वो ट्रिक भी यूज़ करेंगे, वी जंप. ठीक है, अब हमें जंप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक और बार 100 से क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 1000 इंटू 100 आई विल गेट सेंटीमीटर. दैट मीन्स 1 2 3 4 5. दैट मीन्स 5 टाइम, जो 5 zeros हैं, दैट विल गिव मी द सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5. तो दिस विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, ये हमें उसी ट्रिक से कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट ऑन योर ओन, यू विल बी गेटिंग दिस आंसर. दिस इज द वेरी करेक्ट वन. 100 पॉसिबल नहीं है, 1/1000 बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम द बिग वन टू द स्मॉल वन. और 1/1000 तो बिल्कुल भी नहीं है, डिवाइड तो हम करेंगे ही नहीं. नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर? ऑल वी नीड टू डू इज टू मल्टीप्लाई बाय 100. दैट्स इट. ठीक है, तो 5 मीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में तो वी विल बी डिवाइडिंग इट बाय 100. तो इट वुड बी 500 सेंटीमीटर. दैट्स इट. ठीक है, नाउ सी विच, लेट्स चूज द ऑप्शन फर्स्ट. कि भाई अब हमें क्या करना पड़ा? हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो यस, मल्टीप्लाई 5/100. यस, मल्टीप्लाई 5/10. नो. डिवाइड 5/100. नो. डिवाइड 5/10. नो. तो दैट वुड बी द ओनली करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, विच यूनिट विल यू यूज टू मेजर लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लैंड? अब हमें क्या करना है? लैंड के एक पार्ट को मेजर करना है, तो कौन सी यूनिट यूज करेंगे? क्या हम सेंटीमीटर यूज करेंगे? नहीं, बिकॉज वो बहुत छोटी यूनिट है. क्या हम मीटर यूज करेंगे? लिटिल बिट वी कैन. क्या हम किलोमीटर यूज करेंगे? वी कैन. क्या हम मिलीमीटर यूज करेंगे? नो. लेकिन अगर हमें पार्ट ऑफ अ लैंड को मेजर करना है, दैट मीन्स इट कैन बी योर गार्डन, ट्रू, इट कैन बी योर हाउस,
True. That's why we will use meter. Whenever we talk about the long distances like distance between the cities, तब हम ज़रूर किलोमीटर को चूज करते हैं. ठीक है, अब देखेंगे which of the following is the सब मल्टीपल ऑफ मीटर. What we decided कि भाई जो छोटी यूनिट्स होंगी मीटर से छोटी वो सब मल्टीपल्स होंगी और मीटर से जो बड़ी होती है वो मल्टीपल्स होती हैं. ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें छोटी यूनिट्स ढूंढनी है मीटर से छोटी. ठीक है, तो मीटर से छोटी कौन हुई यहाँ पे, सेंटीमीटर, यस. डेकामीटर नो, हेक्टोमीटर नो, किलोमीटर नो. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद क्वेश्चंस. ठीक है, आज का क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं डू इट ऑन योर ओन एज अ होमवर्क. ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिपीट करने हैं उन क्वेश्चंस को और बिना देखे सॉल्व करने हैं यूजिंग द ट्रिक ओनली. ठीक है, साथ ही साथ डू रिमेंबर द ट्रिक, दैट्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हम लोग लेट्स एंड द लेक्चर. दिस इज द लेक्चर 2, राइट. आपको क्या क्या जो है आज सीखा है, वो हमने सीखा है कन्वर्जन एंड मेजरमेंट. एंड नाउ यू विल बी डूइंग द क्वेश्चंस अगेन बाय योरसेल्फ, दैट इज द होमवर्क. ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वी विल बी स्टडिंग मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोर. हम लोग एरिया भी सीखेंगे, हम लोग वॉल्यूम भी सीखेंगे, हम लोग डेंसिटी भी सीखेंगे. ठीक है, फिर हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे मोशन एंड इट्स टाइप्स एंड देन वी विल बी स्टडिंग डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम एंड डूइंग सम न्यूमेरिकल्स. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट और जितना ज़्यादा हो सके डू प्रैक्टिस इट, स्टडी फ्रॉम दिस, यू विल बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स. ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.